إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما جاء في الحديث. حاضرین جمعہ اور اسلامی بہنوں، گزشتہ جمعہ ہم لوگ رمضان عید کے مسائل سن رہے تھے. رمضان کی تیاری کر رہے تھے کہ رمضان جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں، اس کی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے. رمضان آیا، پوری بہاروں کے ساتھ آیا، برکتوں کے ساتھ آیا، رحمتوں کے ساتھ آیا. جنت کے دروازے کھل گئے تھے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے تھے. جو بھی ایک نفل عبادت بھی کیا، اللہ نے اس کو بہت ثواب دیا. جو روزہ رکھا ثواب کی نیت سے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے گناہ معاف ہو گئے. جو آدمی کے تراویح پڑھا رمضان کی، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کمانے کے لیے، اس کے بھی گناہ معاف ہو گئے. اور جو آدمی کے شب قدر کے عبادت میں رات گزارا تو اس کے بھی گناہ معاف ہو گئے. اتنی نیکیاں رمضان لے کر آیا، رمضان رخصت ہو گیا. رمضان رخصت ہونے کے بعد بھی نیکیاں ختم نہیں ہوئی، نیکیاں برقرار رہتی ہیں. نیکیوں کا کوئی موسم نہیں ہوتا، نیکیوں کا موسم نہیں ہوتا، سال بھر نیکیاں رہتی ہیں. جیسے شوال کے روزے ہیں جی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بھی رمضان کے پورے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزہ رکھے، سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. رمضان کے پورے روزے رکھے. اب 2 آدمی ہیں جن کو پورے روزے رکھنے کا موقع نہیں ملتا. ایک تو عورتیں ہیں، ان کو ماہواری کی وجہ سے 4 6 8 روزے رہ جاتے، پورے روزے نہیں رکھ سکتے وہ. اسی طرح جو بیمار رہتے بعد میں اچھے ہو گئے، بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے، ان کو بھی موقع نہیں ملتا پورے روزے رکھنے کا. اسی طرح جو آدمی سفر میں تھے، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، سفر ختم ہو گیا، اب ان کو موقع ملا. اس لیے یہ تینوں پہلے رمضان کے جو روزے باقی ہیں وہ رکھ لیں. رمضان کے جتنے روزے چھوٹ گئے تھے وہ پورے کرنے کے بعد شوال کے آخر تک 6 روزے رکھ لیں تو ان کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک نیکی کرو تو 10 ثواب ملتا ہے، اللہ کے یہاں کم سے کم 10 ثواب ملتا ہے. لہٰذا آپ نے 30 یا 29 روزے رکھے تو آپ کو سمجھے 300 ثواب ملے، 300 ثواب ملے. مہینہ سال ہوتا ہے قمری حساب سے، ہجری حساب سے 350 پر 5، 350 پر 6 دن کا. یہ جو 6 روزے رکھیں گے یہ ہو گئے جی آپ کو باقی روزے کے برابر ہو گئے. اس طرح
360 रोज़े का सवाब आपको मिल जाएगा। इसलिए आदमी रखते हैं, ज़रूरी नहीं है, नफिल है, रखे तो सवाब, नहीं रखे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अक्सर उलमा यही कहते हैं पहले रमज़ान के रोज़े मुकम्मल करो, अगर मुकम्मल हो गए तो फिर उसके बाद रखो। शव्वाल तो बहुत दूर तक है। और उसी तरह रोज़े मुसलसल रखना भी ज़रूरी नहीं है। 2 दिन रखे 2 दिन छोड़े, 2 दिन रखे 3 दिन छोड़े, कोई बात नहीं। लेकिन शव्वाल के 6 रोज़े रखने का सवाब बहुत ज़्यादा है। उलमा ने लिखा फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़ोहर के बाद 2 सुन्नत है, मगरिब के बाद 2 सुन्नत है, इशा के बाद 2 सुन्नत है। उसी तरह कहा कि फ़र्ज़ रोज़े के बाद भी सुन्नत रोज़े हैं। ये रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ थे, सुन्नत रोज़े बाद में रखो तो कहा वो 6 रोज़े होते हैं। इस तरह उलमा ने कहा। लिहाजा आदमी को चाहिए कि रोज़े की पाबंदी करने के बाद अगर मौका मिले तो रमज़ान शव्वाल के रोज़े रख ले, नहीं रखने से कोई गुनाह नहीं है और किसी पर एतराज़ और तनकीद भी नहीं होना चाहिए। रमज़ान में शैतान बंद कर दिए जाते हैं। हदीस के अंदर आता है सुफ़िदत शयातीन, शैतानों को हथकड़ी पहना दी जाती है, जंजीर पहना दी जाती है। लेकिन जो अल्लाह के बंदे रमज़ान में इबादत किए, अल्लाह से तौबा किए, अल्लाह को मनाए और जन्नत से करीब हुए, वो क्या तौबा तोड़ दिए क्या? शैतान भाग गया तो अब फिर आ गया, शैतान उनके साथ आ गया क्या? रमज़ान में तो जकड़ दिया जाता था, रमज़ान ख़त्म होने के बाद शैतान खुल गए। अब वो लोग जो कि सिर्फ रमज़ान में इबादत करते थे, अब नहीं जी, इबादत से बहुत कमी हो गई। फ़र्ज़ नमाज में भी जमात के साथ नहीं पढ़ते। इसका मतलब है कि शैतान उनको आके पकड़ लिया। आदमी को रमज़ान में इतनी ताकत, रूहानी ताकत हो जाती है कि साहब उसकी वजह से शैतान करीब नहीं आता। पूरे रमज़ान की तरावी में जो दर्स हुआ उसी पर था, नेकी करो, अच्छा खाओ, बुराई से बचो, ईमान वालों से अल्लाह ने क्या क्या कहा है सूरह माइदा के अंदर, ये सारी बातें इस साल रमज़ान में आपको सुनाई गई ताकि आप इस्तिक़रार, पायदार रहें। नेकी का मौसम कभी ख़त्म नहीं होता। तो एक तो शव्वाल के 6 रोज़े हुए जी, हर महीने अय्याम में 20 के रोज़े, 13, 14, 15 चांद की तारीख़, इसमें भी रोज़े हैं जी। और उसी तरह पीर का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा, ये भी रोज़ा है जी। अरफे का रोज़ा ये भी है, आशूरे का रोज़ा ये भी है, शाबान के रोज़े ये भी हैं। कितने रोज़े अल्लाह ने रखे हैं कि साहब तुम रोज़ा रखो, सवाब कमाओ और अल्लाह से करीब हो। लेकिन रमज़ान में आम तौर पर देखा यह जाता है कि रमज़ान ख़त्म हुआ तो इबादतों में भी फ़र्क आ गया। इसका मतलब यह हुआ हमारी इबादतें शायद अल्लाह ने कबूल नहीं की। जो लोगों के सिर्फ रमज़ान में बने थे पाबंद, रमज़ानी मुसलमान बने थे, रमज़ानी मुसलमान बने थे, रहमानी मुसलमान नहीं बने थे। रहमानी मुसलमान साल के 12 महीने नेकियां करता है, अलबत्ता रमज़ान में ज़्यादा नेकी करता है, नेकी करता है ज़्यादा रमज़ान में, लेकिन नेकी छोड़ता नहीं है। आप जैसे तरावी पढ़ते थे जी, क्यों नहीं पढ़ते तहज्जुद? क्या मजबूरी आपके पास? चलो जी उठना मुश्किल है, इशा के बाद 2 रकात 4 रकात नमाज पढ़ो, नफिल नमाज, सुन्नत पढ़े 2 रकात, उसके बाद नफिल नमाज पढ़ लो 2 रकात 4 रकात 6 रकात 8 रकात, फिर उसके बाद वितर पढ़ लो। ये भी तहज्जुद है जी, ये भी तरावी है। इसका टाइम इशा के बाद से शुरू होता फजर तक है। किसका? तहज्जुद का टाइम कब शुरू होता? इशा की नमाज पढ़कर 2 रकात पढ़ लिए। अब उसका टाइम कब तक है?
फजर की अजान हमारी मस्जिद में होने तक है। कितना बड़ा टाइम है जी। रात में उठने के लिए आपको परेशानी होती है, इशा की नमाज के बाद 2 सुन्नत पढ़ लिए, पढ़ लो जी। जैसे तरावी पढ़ते ना हम लोग, 2 सुन्नत पढ़े तरावी, वो उसको दूसरे दिन में भी पढ़ सकते हैं। आप उसको तहज्जुद कर लीजिए, तरावी कर लीजिए। तरावी जमात के साथ पढ़ते, आप अकेले पढ़िए, अकेले पढ़ने का बहुत सवाब है। अल्लाह के रसूल कितनी तहज्जुद पढ़ते थे और कितनी लंबी लंबी रकात पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल का मामूल कभी ख़त्म नहीं हुआ। सिर्फ 3 दिन आपने जमात के साथ तरावी पढ़ाई जी, उसको सलातुल लैल, क़ियामुल लैल, तहज्जुद करते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ाए। लेकिन उसके बाद सब लोग पढ़ते थे जी, साल भर तहज्जुद पढ़ते थे, साल भर अल्लाह की इबादत करते थे। कानो कलीलम मिनल लैलि मा यजऊन, अल्लाह के नेक बंदे रात में थोड़ी देर आराम कर लेते। वबिलस्सारि हुम यस्तगफिरून, सवेरे उठ के अल्लाह से इस्तिग़फार करते, तौबा करते। हज के लिए लोगों ने लिखा है, हज कबूल हुआ नहीं कबूल हुआ, उसको जांचने का एक तरीक़ा है। जो आदमी के हज को जाने से पहले बुरा था, कुछ भी था, हज को जाके आने के बाद ठीक हो गया, अच्छा हो गया, गलत काम छोड़ दिया, गलत कमाई छोड़ दिया, दूसरी बहुत सारी बुरी बातें छोड़ दिया, नमाज का पाबंद हो गया, तो समझो कि अल्लाह ने इसका हज कबूल कर लिया। लेकिन अगर कोई आदमी हज को जाने से पहले जैसा था, हज करके आके भी वैसा ही है, तो समझे को उसका हज कबूल नहीं हुआ। वैसे ही रमज़ान का भी मामला है। शाबान में हम जैसे थे, रमज़ान में रोज़े रख के, तौबा करके, इस्तिग़फार करके, सदक़ा करके, खैरात करके और तौबा इस्तिग़फार करके शब क़दर जाग कर नेकी करते करते अल्हम्दुलिल्लाह शव्वाल आया, अच्छे हो गए। शाबान में जितने अच्छे थे उससे अच्छे हो गए। इसका मतलब यह हुआ अल्लाह ने तुम्हारी नमाज़ें कबूल कर ली, तुम्हारे रोज़े कबूल कर लिए, तुम नेक बन गए। अब तुमको बुरे नहीं बनना चाहिए। या बनी अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, अल्लाह कहता है बनी आदम, मैंने तुमसे इकरार लिया था ना कि शैतान के पीछे नहीं चलो, तुम शैतान के पीछे चलते हो क्या? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदुहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा जानी दुश्मन है, तुम भी उसको जानी दुश्मन समझो। शैतान के हो गई जी, बेड़ी में बंद कर दिए थे, ज़रा ठीक थे, खोल दिए, शैतान आके इनको फिर पकड़ लिया। अगर तुम्हारी नेकियां इतनी होती, अब तुम्हारे अंदर ताकत इतनी है, हम शैतान को करीब आने नहीं देंगे।